السلام علیکم، سرچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر اور میں ہوں فائزہ ملک۔ اے ہمارے رب، ہمیں ایسی آفت نے گھیر لیا ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ اپنے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا واسطہ ہمیں ہر قسم کی وبا اور آفات سے محفوظ فرما، آمین آمین ثم آمین۔ بلیٹن کا آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں ملک میں کرونا وائرس نے مزید 32 افراد کی جان لے لی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 1297 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پنجاب سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں کیسز کی تعداد 6733 ہو چکی ہے۔ ملک میں کرونا کے حملے تیز ترین ہو گئے۔ ملک بھر میں کرونا سے مزید 32 افراد دم توڑ گئے۔ مجموعی تعداد 417 ہو گئی۔ پہلی بار 1297 نئے کیس سامنے آنے کے بعد متاثرہ افراد 18114 تک پہنچ گئے۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 6733، سندھ 6675، خیبر پختونخوا 2799 اور بلوچستان میں 1136 مریض سامنے آئے، جبکہ 4717 افراد نے کرونا وائرس کو شکست دے دی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 1297 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 18114 تک پہنچ گئی ہے۔ پنجاب میں 6733، سندھ 6675، خیبر پختونخوا 2799، بلوچستان میں 1136 کیسز رپورٹ ہوئے۔ اسلام آباد میں 364، گلگت بلتستان 340 اور آزاد کشمیر میں 66 مریض سامنے آئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 32 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 417 تک پہنچ گئی۔ سب سے زیادہ اموات خیبر پختونخوا میں ہوئیں، جن کی تعداد 161 ہے، جبکہ سندھ میں 118، پنجاب 115، بلوچستان 16، گلگت بلتستان 3 اور اسلام آباد میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران 400 افراد صحتیاب ہوئے، جس کے بعد تعداد 4715 ہو گئی۔ پنجاب میں 2205، سندھ میں 1295، خیبر پختونخوا میں 690، بلوچستان 183، گلگت بلتستان 255 اور اسلام آباد میں 44 افراد صحتیاب ہوئے۔ آزاد کشمیر میں بھی 43 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس بھی کام نہ آیا۔ جگہ جگہ کوڑا کرکٹ کی ڈھیر۔ لاہور کے ایکسپو سینٹر میں قرنطینہ مریض ایک بار پھر سراپا احتجاج بن گئے۔ گھروں میں آئسولیشن کی اجازت مانگ لی گئی۔ ہمارے ساتھ نبیل نقوی موجود ہے، تفصیلات ان سے پوچھیں گے۔ نبیل بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور میں کے ایکسپو فیلڈ اسپتال میں ایک ہفتے میں یہ دوسرا احتجاج ہے جو مریضوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ ایکسپو فیلڈ اسپتال میں مریض ایک بار پھر جو ہے آج اسپتال سے باہر آ کر انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مریضوں کا شکوہ یہ تھا کہ فیلڈ اسپتال میں صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات ہیں۔ درجنوں مریضوں کے لیے صرف ایک واش روم ہے جو سب استعمال کرتے ہیں، نہ واش رومز میں نہ صابن ہے اور نہ ہی مریضوں کو ہاتھوں کو دھونے کے لیے سینیٹائزر دیے گئے ہیں۔ مریضوں کا احتجاج کرتے ہوئے یہ بھی کہنا تھا کہ اگر اتنے ہی برے حالات میں رکھنا تھا تو کرونا کی منفی رپورٹ کیسے آ سکتی ہے، جبکہ فیلڈ اسپتال میں چیک کرنے کے لیے اس وقت تک مریضوں کے مطابق کوئی ڈاکٹر موجود نہیں، جبکہ مریضوں کو یہ بھی شکوہ سامنے آیا ہے کہ اگر حکومت اسپتالوں میں سہولیات نہیں دے سکتی تو ہمیں گھر میں ہی آئسولیٹ کرنے کا جو ہے وہ اجازت دی جائے، جبکہ اسپتالوں میں مکمل طور پر اس وقت خاص طور پر ایکسپو فیلڈ اسپتال میں مکمل طور پر ناقص کھانا بھی دیا جا رہا ہے، جبکہ کچھ دن پہلے وزیر اعلیٰ کی جانب سے لیے جانے والے نوٹس باوجود جو انتظامیہ کی طرف سے کوئی شخص ایکسپو فیلڈ سینٹر نہیں پہنچا۔ جی نبیل یہ بتائیے گا، وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا تھا، کیا بنا اس نوٹس کا؟ بالکل، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسی ہفتے میں سے 2-3 دن قبل جو ایکسپو فیلڈ میں ایک احتجاج ہوا تھا، تب بھی اس کا نوٹس وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے لیا تھا اور وزارت صحت سے اور صحت کے دیگر اداروں سے جو تھی رپورٹ طلب کی تھی، تاہم اس کے مطابق کوئی نوٹیفیکیشن کے بعد جو ہے نوٹس لینے کے بعد کسی قسم کا ایکشن حکومت کی جانب سے نہیں لیا گیا اور آج کے احتجاج بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ مریضوں کا بھی یہی ایک شکوہ سامنے آیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے نوٹس کے باوجود جو سہولیات تھیں ان میں بہتری نہیں آ پائی ہے۔ جی شکریہ نبیل نقوی۔ گوجرانوالا میں کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے بنائے گئے فیلڈ ہاسپٹل میں ناقص انتظامات، تیز آندھی اور بارش نے فیلڈ ہاسپٹل میں ضلعی انتظامیہ کے ناقص انتظامات کا پول کھول دیا۔ تیز آندھی اور بارش نے فیلڈ ہاسپٹل میں ضلعی انتظامیہ کے ناقص انتظامات کا پول کھول دیا۔ ہاسپٹل کا فرنیچر اور دیگر طبی آلات ٹوٹ چکے ہیں۔ اسی پر مزید ڈیٹیلز جان لیتے ہیں۔ علی محمد اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی علی بتائیے گا۔ جی بالکل، ضلعی انتظامیہ کی جانب سے 6 دنوں میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کے لیے فیلڈ ہاسپٹل تیار کیا گیا تھا، جو کہ 200 بیڈ پر مشتمل تھا۔ اس ہاسپٹل میں سہولیات کی بلند و بالا دعوے تو کیے گئے تھے، مگر
इधर देखा ये गया है कि हॉस्पिटल के अभी ऑपरेशन हुए सिर्फ चंद रोज ही गुजरे हैं, तो पहले तो नाके सेवरेज की वजह से गंदा पानी जो है वो जमा हो गया, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसकी खबर जब सच न्यूज पर नशर हुई तो इंतजामिया हरकत में और हंगामी बुनियादों पर पानी को निकलवाया गया। तो अब रात को तेज आंधी और बारिश के बाद हॉस्पिटल में जो लगा फर्नीचर और दीगर तिब्बी आलात हैं वो टूट गए हैं। हॉस्पिटल की बिजली मुंतका हो गई, जिससे मरीजों में खौफ और अफरा तफरी का सामान भी पैदा हो गया था। फर्नीचर के टूटने गिरने से मरीजों ने भागकर अपनी जान बचाई। जिला इंतजामिया ने 65 लाख रुपए की लागत से ये फील्ड हॉस्पिटल तैयार करवाया था। फुटेज में भी देखा जा सकता है कि कैसे तेज आंधी की वजह से फील्ड हॉस्पिटल का सामान टूट कर शिकार हो गया। फील्ड हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से सामान को दोबारा ठीक करने की भी कोशिश की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे। कोरोना के खिलाफ सफ़े अव्वल में लड़ने वाले तिबी अमले की जान को शदीद खतरात लाहक हैं। सैल्यूट नहीं हिफाजती लिबास फराहम किया जाए। साथ ही डॉक्टर्स की जिंदगियों के लिए परेशान खातून डॉक्टर ने इंतजामिया की गफलत से पर्दा उठाते हुए हुकूमत से मदद की अपील कर दी। मैं ये वीडियो में कभी भी पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट इतना ओपनली नहीं बोलती, लेकिन वो पॉलिटिशियंस जो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट मांग रहे हैं, नहीं मांगने चाहिए, या उनको नौकरी छोड़ देनी चाहिए, या उनको लगता है कि ये सिर्फ नखरे कर रहे हैं टू गेट हायर पेस, उनको अपनी इस बात पे शदीद शर्मिंदगी होनी चाहिए। डॉक्टर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन्हें आप लोगों की सल्यूट और आप लोगों की सलामियां नहीं चाहिए। डॉक्टर्स को पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट चाहिए, वो इज्जत चाहिए इस कम्युनिटी में जो उनको दी जानी चाहिए, जिसके वो हकदार हैं। कोई भी प्रोफेशनल हो, उसके पास बेसिक इक्विपमेंट अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। आप लोग आग में झोंक रहे हैं अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स को, और अगर आपके पास डॉक्टर्स खत्म होना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपके मरीजों को कौन बचाएगा, आपके लोगों को कौन बचाएगा। इट्स हाई टाइम द गवर्नमेंट स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट मेकिंग अ good health policy and actually implementing it for once. अमरीकी महकमा FDA ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए रेमेडी सेवर दवा के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। दवासाज कंपनी ने 15 लाख खुराकें अतिया करने की हामी भी भर ली है। सदर ट्रंप ने तस्दीक की है कि महकमा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने हंगामी बुनियादों पर कोरोना के इलाज के लिए रेमेडी सेवर नामी दवा के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। दवा बनाने वाली जायद कंपनी के सरबराह ने इस इकदाम को इंतहाई अहम और पहला कदम करार दे दिया है। रेमेडी सेवर की 15 लाख और खुराकें अतिया करने की हामी भी भर दी गई है। अमरीकी नायब सदर माइक ने कहा है कि दवा को जल्द अस्पतालों में पहुंचाया जाएगा। ये दवा इब्तिदा में एबियोला के इलाज के लिए तैयार की गई थी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तहकीक से मालूम हुआ है कि इसके बायस कोरोना वायरस की अलामात को 15 से 11 दिन तक कम करने में मदद मिल सकती है। चीन में की जाने वाली एक तहकीक में दवा की अफादियत पर सवाल उठाए गए थे। कोरोना वबा में आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमती दावे महज दावे ही साबित हुए। मुजफ्फरगढ़ जिला में सरकारी तौर पर कोरोना टेस्ट की सहूलत न होने की वजह से शहरी प्राइवेट लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाने पर मजबूर है। मोहम्मद अजमल की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वबा में आवाम को सहूलियात फराहम करने के हुकूमती दावे महज दावे ही साबित हुए। अभी तक जिला मुजफ्फरगढ़ में कोरोना टेस्ट के हवाले से एक भी लैब मुहैया नहीं जहां शहरी अपने कोरोना टेस्ट करवा सकें। हुकूमत की तरफ से यहाँ पर कोई ऐसे इंतजाम नहीं किए गए जिससे कोरोना के मरीजों का टेस्ट हो सके। इसके अलावा डीसी साहब ने पिछले मंथ भी कहा था कि हम एक और प्लांट बना रहे हैं कोरोना टेस्टिंग के लिए, लेकिन अभी तक वो तैयार नहीं हुआ, ना वहाँ पर कोई टेस्ट किए गए हैं। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, कोरोना टेस्ट की लेबॉर्ट्री की जहाँ तक बात है, हम इससे पहले मुल्तान की लेबॉर्ट्री से और लाहौर से करवाते रहे हैं, लेकिन यहाँ की आवाम के लिए एक अच्छी बात, अच्छी खबर ये है कि हमारा जो रजब तैयब अब्दुल्लान हॉस्पिटल है, इसमें बहुत जल्द एक लेबॉर्ट्री कायम हो जाएगी और इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर टेस्ट शुरू हो जाएंगे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत जिला मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए जिला और तहसील लेवल पर कोरोना टेस्ट लेबोरेटरीज का एहतमाम करे, जहां शहरी आसानी के साथ अपने कोरोना टेस्ट करवा सकें। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि थाना मोरगाह में वाक़ई अस्पताल में खातून मरीजा को डिस्चार्ज करवाना लवाहिकीन को महंगा पड़ गया है। अस्पताल इंतजामिया ने खातून के लवाहिकीन को पुलिस के हवाले कर दिया। इस पर मजीद डिटेल जान लेते हैं सुहेल राजा से। जी सुहेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये थाना मोरगा की हदूद है। खातून मरीजा को निजी अस्पताल में जब वो दाखिल थी, जिसको डिस्चार्ज कराना लवाहिकीन को महंगा पड़ गया। अस्पताल इंतजामिया ने खवातीन को लवाहिकीन को पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि खातून मरीजा को गुज़िश्ता 4 साल से काला यरकान की मर्ज में मुब्तला थी, अहले खाना का कहना है।
कोरोना वायरस नहीं सिर्फ काला यरकान है, कोरोना वार्ड में मुंतकिल ना किया जाए। खातून के खावन का कहना है, खातून को कोरोना वार्ड मुंतकली पर लवाकिन ने डिस्चार्ज करवाने पर खातून के खावन और कजन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सुहेल राजा हमारे साथ मौजूद थे। एक जानिब कोरोना के हमले तेज हो रहे हैं तो दूसरी जानिब हुकूमत ने 15 रमजान मुबारक के बाद लॉकडाउन में 70% कमी की तैयारी कर ली है। लॉकडाउन से सताए अवाम के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गईं। ज़राए के मुताबिक 15 रमजान से ज्यादातर कारोबार खोलने और लॉकडाउन में 70% तक नरमी करने पर आला सतह के इजलास में इत्तफाक़ राय हो गया। फैसला कोरोना वायरस के आलमी और मुल्की आदाद और शुमार और तज्जियाती रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखकर किया गया। बावसूख ज़राए के मुताबिक रमजान मुबारक के दूसरे अशरे में अक्सर दुकानें, मार्केटें, बाजार, सनतें चंद शराइत और एहतियाती इक़दामात पर अमल दरामद की जमानत के साथ खोल दी जाएंगी ताकि लॉकडाउन से मुतासरा लाखों मेहनतकश दुकानदार और दिहाड़ीदार तबका दोबारा अपनी तगदो में लग जाए। इसके साथ साथ अवाम को खुराक को अद्वियात से हटकर दीगर जरूरियात जिंदगी की खरीदारी और ईद की शॉपिंग का मौका भी मिल सकेगा। ज़राए के मुताबिक तमाम तर आदाद शुमार और इम्कानात को मद्देनजर रखकर इस पर इत्तफाक़ राय हुआ कि 9 मई के बाद लॉकडाउन को इंतहाई महदूद कर दिया जाएगा। नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। हुकूमत की जानिब से जुज़वी लॉकडाउन बरकरार है, ताहम एक जानिब लॉकडाउन है तो दूसरी तरफ जिंदगी मामूल पर भी है। शहरियों की जानिब से कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बावजूद गैर संजीदगी देखने में आ रही है। इस्लामाबाद की सूरत हाल जान लेते हैं नुमाइंदा सच न्यूज़ कामरान चौधरी से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो जुज़वी तौर पर लॉकडाउन बरकरार है, ताहम सूरत हाल जो है वो ये है कि इस्लामाबाद के शहरी जो है वो इस लॉकडाउन को इंतहाई गैर संजीदा ले रहे हैं। जो सूरत हाल है वो मेरे कैमरामैन बिलावल खुर्शीद आपको दिखा सकते हैं। ये मेन एक्सप्रेस हाईवे है, यहाँ पे जो है वो गाड़ियों का तवील जो लाइनें हैं वो नजर आएंगी आपको, और गाड़ियों का ये रश जो है वो इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पर भी नजर आएगा आपको। इसी तरह से इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात जो हैं वहाँ पे भी आपको जो है वो रश इसी तरह से मामूल में नजर आएगा। पिछले हफ्ते और इतवार को चूंकि रमजान मुबारक का दूसरा रोजा था तो तब जो है वो शहरियों की जानब से जो है वो इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अगर मकामात का हमने दौरा किया तो मामूल से कम लोग थे और रश जो था वो कम था। तो समझा ये जा रहा था कि रमजान मुबारक के साथ ही जो है वो लॉकडाउन को लोग जो है वो संजीदा लेना शुरू हो गए हैं। ताहम अब जो सूरत हाल है वो ये है कि इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाहराहों पे जो है वो रश जो है वो मामूल से भी बढ़ना शुरू हो चुका है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात, मार्केटों में जो है वो रश सुबह और शाम के औकात में बढ़ जाता है। तो लोग जो है वो लॉकडाउन को इंतहाई गैर संजीदगी से ले रहे हैं। उसके बरक्स अगर सूरत हाल का जायजा लिया जाए कोरोना वायरस की तो इस्लामाबाद में कमोबेश 320 केसेस अब तक जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं, और 320 केसेस होने के बावजूद जो है वो शहरी इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं और लॉकडाउन जो है वो जुज़वी तौर पर बरकरार है। ताम शहरियों के लिए ये लॉकडाउन किसी तरह से भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि सूरत हाल जो है वो हुकूमती अहकामात के बिल्कुल बरअक्स है। जी शुक्रिया कामरान चौधरी। कराची में एक तरफ लॉकडाउन में सख्ती की हिदायत तो दूसरी जानिब जगह जगह लगे नाकों के बावजूद स्ट्रीट क्रिमिनल सरगर्म है। सीसीटीवी में साफ देखने वाले चेहरे पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पा रहे। मुजाहिर सईद रिपोर्ट करेंगे। कराची समेत सूबे भर में लॉकडाउन 41वें रोज में दाखिल हो गया। पुलिस ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले 170 अफराद को गिरफ्तार करके 85 मुकदमात दर्ज कर लिए। तर्जमान सिंध पुलिस के मुताबिक कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी की खिलाफ वर्जी पर 600 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया। 40 रोज में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार अफराद की तादाद मजमूई तौर पर 10,400 से तजावज कर गई। दूसरी जानब पुलिस की कार्रवाइयों और जगह जगह लगे पुलिस के नाके स्ट्रीट क्रिमिनल लूटमार को कम न कर सके। जिला वेस्ट में बाइक लिफ्टर फैमिली गैंग सरगर्म है। गुज़िश्ता रोज बल्दिया मदीना कॉलोनी में फैमिली गैंग दौरान इफ्तारी घरों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल ले उड़े। कराची के इलाके अजीजाबाद में खवातीन से सरेआम डकैती की फुटेज भी सामने आ गई। सीसीटीवी में मोटरसाइकिल सवार मुलजमान को लूट मार करते देखा जा सकता है। फैसलाबाद में माह मुकद्दस और कोरोना लॉकडाउन में मुहैयर हजरात की जानिब से मुस्तहिक अफराद के लिए इमदाद की फरहमी का सिलसिला जारी है। इमाम बारगाह हैदरिया में मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया गया ताकि इनकी सहरी और इफ्तारी को बेहतरीन एहतमाम हो सके। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अली गौहर। कोरोना के बायस मुस्तक अफराद की परेशानियों को कम करने के लिए मुखैर हजरात की जानब से रमजान पैकेज की तकसीम का सिलसिला जारी है। इमाम बारगाह हैदरिया में मुस्तक अफराद में राशन तकसीम किया गया ताकि वो माह मुकद्दस में सहरी और इफ्तारी का मुनासिब इंतजाम कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ
بعد میں یہ ہے کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ جو بھی مستحقین ہیں ان کے گھر یہ سلسلہ جانا چاہیے تاکہ یہ عمل پورا ہو سکے اور لوگوں کی جو ضروریات پوری ہو سکے. معصومین کی جو سیرت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنا مسلح عبادت چھوڑ کے لوگوں کے گھروں میں جاتے، مستحقین اور غربا، مساکین، یتیم کے گھر تک وہ جو ہے کھانے پینے کی چیزیں پہنچاتے. تو وہ اللہ کو یہ عمل اپنی عبادت سے زیادہ پسند ہے. آج کل جیسے کرونا کے حالات جاری ہیں، لوگ بڑے تنگ دست ہوئے ہیں، تو تنگ دستی کے عالم میں ایک دوسرے کے ساتھ راشن کو دیا جانا اظہار قربانی کے جذبے کو اشکار کرتا ہے، ابھارتا ہے. ماہ رمضان میں یہ راشن پہنچایا جائے تاکہ وہ سحر افطار کا ان کا بندوبست ہو سکے. کورونا وبا اور ماہ مقدس کے آغاز میں مخیر حضرات کی جانب سے امداد نے مشکل کی اس گھڑی میں مستحق افراد کو کافی سنبھالا دیا ہے. مخیر حضرات کا یہ کہنا ہے کہ خدمت کا یہ عمل جاری رہنا چاہیے تاکہ مستحق افراد کی سحری اور افطاری بھی بہترین انداز میں اہتمام کر سکے. کیمرہ مین احتشام انصاری کے ساتھ علی گوہر، ساچ نیوز، فیصل آباد. پاک بحریہ کورونا کے خلاف جنگ میں عوام کی مدد میں پیش ہے. ملک کے مختلف حصوں میں لاک ڈاؤن کی صورتحال سے متاثرہ خاندانوں کی امداد کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ طبی عملے کے لیے میڈیکل کٹس اور حفاظتی سامان فراہم کیا جا رہا ہے. بحریہ کی جانب سے سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں، قصبوں اور دور دراز کے گاؤں میں امدادی سامان کی تقسیم جاری ہے. دور دراز علاقوں تک امدادی سامان کی ترسیل کے لیے پاک بحریہ کے جدید بحری کرافٹس کا استعمال کیا گیا. پنجاب کے مختلف اضلاع کے ہزاروں خاندان بھی راشن، جبکہ طبی عملے کے لیے میڈیکل کٹس اور حفاظتی سامان فراہم کیا گیا. ترجمان کے مطابق پاک بحریہ اس وبائی مرض کے خلاف قوم کی مدد کے لیے پرعزم ہے. لاک ڈاؤن سے کراچی چڑیا گھر کے جانوروں کی ٹینشن بھی ختم ہو گئی ہے. کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہے. لاک ڈاؤن نے اگر انسانوں کی مشکلات بڑھا دی ہیں تو وہیں جانوروں کی مشکلات آسان کر دی ہیں. بھیڑ چھٹ گئی، چھیڑ چھاڑ اور تنگ کرنے والا بھی کوئی نہیں. لاک ڈاؤن کے باعث کراچی کے چڑیا گھر میں جانوروں کی موجیں لگ گئیں. ٹینشن دور ہونے کے بعد پرندوں، بندروں اور مگرمچھوں کے موڈ میں تبدیلیاں آئی ہیں. جنگلی حیات پر تحقیق کرنے والے ماہرین بتاتے ہیں کہ وائلڈ اینیمل انسانوں کو دیکھتے ہی ٹینشن میں آ جاتے ہیں. عقل و شعور سے محروم ہونے کے باوجود انہیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی قربت خطرے سے خالی نہیں. یہاں آنے والے انسان کبھی مگرمچھوں اور دیگر جانوروں پر پان کی پیک تھوک دیتے ہیں تو کبھی جانوروں کو تنگ کرتے ہیں. تاہم لاک ڈاؤن نے ان کی یہ مشکل آسان کر دی ہے. لاک ڈاؤن کے بعد دنیا پہلے جیسی نہیں ہوگی، لیکن چڑیا گھر انتظامیہ کی اپیل ہے کہ یہاں آنے والے لوگ جانوروں کے ساتھ اپنے برتاؤ کو ابھی سے انسانوں والا رکھیں تاکہ جانوروں کی ٹینشن ہمیشہ کے لیے دور ہو سکے. مئی میں موسم کیسا رہے گا؟ محکمہ موسمیات نے آؤٹ لک جاری کر دیا. وسطی اور میدانی علاقوں میں بارشوں کے نئے سلسلے کا آغاز ہو گیا. 6 مئی تک بارشیں رہیں گی. بارش، آندھی اور ژالہ باری سے گندم کی کھڑی فصل کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، جبکہ گندم کی کٹائی کا عمل متاثر ہو رہا ہے. ملک میں ہونے والی بارش سے ایک طرف تو موسم کی شدت میں کمی آئی ہے، دوسری طرف تیار اور کٹی فصلوں کو بھی خاصا نقصان پہنچ رہا ہے. مئی کے پہلے ہفتے میں ملک کے بیشتر علاقوں میں دن کے دوران موسم خشک اور گرم رہنے، جبکہ رات میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے. آج ملک کے بیشتر علاقوں میں دن کے دوران موسم خشک اور گرم رہے گا. تاہم خیبر پختونخوا، اسلام آباد، بالائی اور جنوبی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بارش کے سبب گندم کی کٹائی رک چکی. شدید موسمی صورتحال کے سبب گندم اور مکئی کی تیار فصل کو خاصا نقصان پہنچا ہے. ژالہ باری اور شدید بارشوں سے تیار فصلوں اور سبزیوں پر برے اثرات مرتب ہوں گے. گندم کی پیداوار متاثر ہونے کا خطرہ منڈلانے لگا ہے. فصل کو نقصان کے پیش نظر آٹے کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ بھی ہے. متعدد علاقوں میں بارش سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بعض علاقوں میں فیڈر اسٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی بھی معطل ہوئی. کراچی میں 5 سے 8 مئی کے دوران ہیٹ ویو کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے بعد پی ڈی ایم میں سندھ نے بھی ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا ہے. پی ڈی ایم میں کمشنر کراچی اور میٹروپولیٹن کمشنر کے ایم سی کے نام مراسلہ لکھ دیا ہے. مراسلے میں کہا گیا ہے کہ 5 سے 8 مئی تک کراچی میں درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے. پی ڈی ایم اے نے مراسلے میں کمشنر کراچی سے درخواست کی ہے کہ کرونا وائرس کے تناظر میں ہیٹ ویو سے بچاؤ کے لیے پیشگی انتظامات کیے جائیں اور ہیٹ ویو سے قبل تمام احتیاطی تدابیر طے کی جائیں. بارش کاشتکاروں کے لیے زحمت بن گئی. کبیروالا میں بارش سے گندم کی فصل کو شدید نقصان پہنچا، جس سے کسان پریشان ہیں. عبد المجید باٹی رپورٹ کریں گے. کل تک گندم کی جو فصلیں پک کر تیار ہوا کے دوش پر لہلہاتی دکھائی دے رہی تھیں، آج خدائی آفات کے سبب بے موسموں کی بارشوں اور ژالہ باری سے کبیروالا سمیت جنوبی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں تباہ ہو چکی ہیں اور کسان کی 6 ماہ کی محنت رائگاں ہو گئی ہے.
ताहम कबीरवाला समेत जनूबी पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिशों का ये सिलसिला भी जारी है, जबकि बच जाने वाली फसलें भी बारिश के बायस नमी का शिकार हैं, जिसके पेश नजर बर वक्त कटाई का सिलसिला रुक गया है। गंदम के सिट्टे काले होने लगे हैं और गंदम की औसत पैदावार में कमी के खदशात में इजाफा हो गया है। हालिया बारिशों के बायस 20 मन फी एकड़ पैदावार कम होने का खदशा है और इससे जो मौसम की सूरत हाल चल रही है वो बाकी फसलें भी लेट हो जाएंगी। आइंदा चंद दिनों तक मौसम के तेवर न बदले तो बाकी मांदा खड़ी फसलें भी बारिशों की नजर हो जाएंगी, जिससे खुदा न खास्ता ग़िज़ाई किल्लत के शदीद बहरान के खतरात सर पर मंडलाने लगे हैं। खुदाई आफात से बचा तो नहीं जा सकता, अलबत्ता हुकूमत वक्त ऐसे इलाकों में जहां गंदम की फसलों को शदीद नुकसान हुआ है उन्हें आफत ज़दा करार देकर उन बेचारे किसानों की माली मुआवनत करे। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਂधी ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਣਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੰਝ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲकुल ਜੱਟ ਨੂੰ 1 रुपया भी नहीं मिल सकता। वगरना आइंदा पैदा की जाने वाली बुनियादी फसलों में कपास के अलावा दीगर कई फसलें भी काश्त करना मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन वकासल इसहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज। रुख करेंगे फैसलाबाद का, तो आपको बताएं कि फैसलाबाद में होने वाली बारिश से गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि ताहाल बारदाना की फरहमी यकीनी नहीं बनाई जा रही, जिससे मेहनत जाया होने का खदशा पैदा हो गया है। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं अली गौहर, उनसे मजीद डिटेल्स जान लेते हैं। अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, किसानों की परेशानियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। किसान जो फसल जो है उसकी कटाई का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन बारिशों की वजह से उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं। उनका ये कहना है कि फसल जो खराब होने का खतरा है, मुश्किल हालात में जिस तरह से वो फसल तैयार करते हैं और उस हवाले से उनकी जो परेशानियां हैं उसका कोई हल नहीं मिल रहा। ताहल उनका ये कहना है कि बारदाना नहीं पहुंचा, जिस वजह से उनकी परेशानियां मजीद बढ़ गई हैं। उनका मजीद क्या कहना है उनसे जानते हैं। बताइएगा क्या क्या परेशानियां हैं। बारिशों की वजह से ये हमारी जो फसल है ये बहुत तबाह हो चुकी है। इससे पहले भी यहाँ पे टिड्डी दल का हमला हुआ था, उससे भी फसलें तबाह हुई थी। अब ये बारिशों की वजह से हमारी कटी हुई फसल जो है ये तबाह हो चुकी है। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि हमारे साथ ताउन किया जाए। जी बिल्कुल, उनका ये कहना है कि बारिशों की वजह से उनकी फसलें जो हैं वो खराब हो रही हैं। बताइएगा, इस वक्त कटाई तो कर लिया यहाँ, तो बारदाना क्या आपको मिल गया? नहीं सर, अभी तक नहीं मिला है। देखो तुसी ढेरियां लगियां, रात की बारिश ने बिल्कुल कनक जी तबाह कर दी है। मजदूर आदमी वास्ते बहुत परेशानी है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप किसानों की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनका कहना है कि मौसमी असरात जो है, मौसम के बदलते हुए तेवर जो है वो फसलों के लिए नुकसानदेह। उनका कहना है उनकी मेहनत जाया होने के खतरात है, लेकिन इसके साथ साथ इंतजामिया जो है इस हवाले से कोई तवज्जो नहीं दे रही। बहरहाल बारदाना की फराहमी जो है ताहाल यकीनी नहीं बनाई गई, जिस वजह से मुश्किलात मजीद बढ़ गई। शुक्रिया अली गौहर। टिड्डी दल ने दादू समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में फिर खड़ी फसलों पर हमला कर दिया, जिससे काश्तकार परेशान है। महकमा ज़राअत और जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। शोएब तहीम की रिपोर्ट। सिंध के काश्तकारों के लिए एक मर्तबा फिर खतरे की घंटी बज गई है। एक बार फिर टिड्डी दल ने दादू समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों का रुख कर लिया है। टिड्डियों के झुंड ने फसलों पर हमला करके तबाही मचा दी है, जिसके बायस काश्तकार सख्त परेशान हो गए हैं। पता नहीं कहां से आ गई है, लाखों की तादाद में, और हम हुकूमत से अपील करते हैं इसका कोई जल्दी जल्दी बंदोबस्त करे, वरना हमारा लाखों नुकसान हो जाएगा। लाखों की तादाद में टिड्डियों ने हमारे फसल पर हमला किया है और हमारा लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हम गवर्नमेंट पाकिस्तान से अपील करते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दें और स्प्रे का कोई बंदोबस्त करवाएं। फसलों को इन हमलावर टिड्डियों से बचाने के लिए हुकूमत कुछ नहीं कर सकी। फसलों पर मुसलसल टिड्डियों के हमले से काश्तकारों को लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। अगर हुकूमत ने टिड्डियों के खात्मे के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए तो मजीद सिंध की ज़राअत तबाह होने का अंदेशा है। शोएब तहीम, सच टीवी, दादू। फैसलाबाद में रात भर बरसने वाली बारिश ने घर उजाड़ दिया। आसमानी बिजली और छतें गिरने के वाकयात में 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। आपको बताएं कि फैसलाबाद में रात भर बरसने वाली बारिश ने घर उजाड़ दिए। आसमानी बिजली और छतें गिरने से के जो वाकयात है उससे 7 अफराद जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं। शुहेब अल्ताफ हमारे साथ मौजूद हैं। शुहेब, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में गुज़श्ता पूरी रात बरसने वाली बारिश ने बहुत से घरों को मुतासर किया है, कुछ घर उजाड़ दिए हैं। मुख्तलिफ वाकयात में जो है वो तकरीबन 7 अफराद जख्मी होकर वो अस्पतालों में पहुंच गए हैं, जिनमें से 3 की हालत जो है वो नाजुक बताई जाती है। फैसलाबाद में शेखुपुरा रोड पे मानावाला का इलाका है, जहाँ पे आसमानी बिजली गिरी और आसमानी बिजली गिरने से घर की छत गिर गई और छत गिरने के बाद उस घर में आग लग गई। 2 अफराद यहाँ पे शदीद जख्मी हुए हैं, 18 साल फायजा और 16 साल साद।
जिनको अलाइड हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। इसके बाद खोड़ेवाला का इलाका में जो है वो जो टी आयरन की छत होती है वो गिरी है तेज तूफान और बारिश की वजह से, और उसमें एक ही घर के 4 अफराद जो हैं, मियां बीवी और 2 बेटियां, एक 13 साल बेटी है, एक 10 साल बेटी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुहेब अल्ताफ हमारे साथ मौजूद थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। रमजान मुबारक में अशिया खुर्नोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। हर चीज की कीमत दुगनी हो चुकी है। कराची के शहरियों को किन मसाइल का सामना है, जानते हैं नुमाइंदा सच टीवी शहजादा मोइन से। जी शहजादा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, एक तरफ लॉकडाउन का सिलसिला जारी है शहर कायद के अंदर, और दूसरी तरफ जो है अगर देखा जाए तो महंगाई सर चढ़कर बोल रही है शहर कायद के अंदर। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं महंगाई के हवाले से। जी क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महंगाई के हवाले से जो हुकूमत वक्त का करने का काम है वो बेहतर अंदाज से अपना काम सर अंजाम नहीं दे रही है। हम आम तौर के ऊपर दीगर ममालिक के अंदर देखते हैं कि रमज़ान मुबारक के महीने में ख़ास तौर पे वो ममालिक के जो मुसलमान तबके जिनके अंदर ज़्यादा है, वहाँ पे जो है वो आम तौर पे सब्जियों के अंदर, कीमतों के अंदर, फ्रूट्स के अंदर और जितने खाने पीने की अशिया है और आराम से रहन सहन और रोज़ के गुजर बसर की अशिया है उनके अंदर कमी कर दी जाती है। लेकिन ख़ास तौर पर मुल्क पाकिस्तान के अंदर कोई त्यौहार आए, कोई इस्लामी महीना है, उसको जो है कारोबार के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। हुकूमत भी कारोबार करती है, अवामुन नास को जो है वो जितना दबा सकते हैं उस तरीके से दबाती चले जाती है, और एक कारोबार का बाजार जो है इस मुल्क के अंदर हमेशा की तरह इस दफ़ा भी जो है गर्म करके रखा हुआ है। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि हुकूमत अपना काम करती हुई महंगाई पे नहीं कंट्रोल कर पा रही है, और महंगे जो दाम हैं वो यहाँ पर अब हर ठेले पर, हर दुकानों पर होते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन हमारे साथ मौजूद थे। और अब आपको बताएं कि लाहौर की ज़िला इंतजामिया ने प्राइस कंट्रोल की गुज़िश्ता रोज की रिपोर्ट जारी कर दी है। शहर भर में 98,500 रुपए जुर्माने किए गए। जिला इंतजामिया लाहौर प्राइस कंट्रोल की करंट के लिए मुताबिक डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल के मुताबिक प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट ने शहर भर में 380 इंस्पेक्शंस की, मजमूई तौर पर 98,500 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। शहर भर में 72 मकामात पर ग्राम फरोशी पाई गई, जबकि 32 ग्राम फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। 35 ग्राम फरोशों को हिरासत में लिया गया, एक को जेल भेजा गया। डीसी लाहौर दानिश अफजाल ने हिदायत जारी की कि प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट फील्ड में सख्ती करें, मंडियों में फलों और सब्जियों की नीलामी को भी मॉनिटर किया जाए। मुल्तान में कमिश्नर शानुल हक ने यूटिलिटी स्टोर्स के औकात बढ़ाने का हुक्म दे दिया है। मरासले के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। यूटिलिटी स्टोर के औकात कार बढ़ाने का फैसला अवामी सहूलत के पेश नजर किया गया। यूटिलिटी स्टोर पर कोरोना कंट्रोल, समाजी फासले पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। मरासले का यह मतन है, तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर सरकारी निर्ख वाज़े तौर पर आवेजा किए जाएंगे, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी यकीनी बनाया जाएगा। मुल्तान में कमिश्नर शानुल हक ने यूटिलिटी स्टोर्स के औकात कार बढ़ाने का हुक्म दे दिया। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर्स रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। सनतों और फैक्ट्रियों से खवातीन को जबरी नौकरियों से निकालने के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी गई है। आपको बताएं कि सनतों और फैक्ट्रियों से खवातीन को जबरी नौकरियों से निकालने के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी गई है। सनतों और फैक्ट्री से खवातीन को जबरी नौकरियों से निकालने के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करवा दी गई है, और ये खवातीन मेहनतकश खवातीन का 80% हैं, फवायद से महरूम हैं। ये करारदाद का मतन है। छोटी बड़ी सनतों और कारखानों से मेहनतकश खवातीन को निकाला जा रहा है। फैक्ट्री मालिकान को पाबंद किया जाए कि खवातीन वर्कर्स को तनख्वाहें अदा की जाए। औरतों को मर्दों के मुसावी उजरत को भी यकीनी बनाया जाए। दुनिया में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 34 लाख से तजावुज कर गई। अब तक 2,39,000 से जायद अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। दुनिया में 10,83,000 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके। अमेरिका में 11,31,000 अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी। स्पेन में 2,43,000, इटली में 2,07,000 केसेज रिपोर्ट हुए। बरतानिया में 1,77,000, फ्रांस में 1,67,000 अफराद कोरोना का शिकार हुए। व्हाइट हाउस कोरोना वायरस पर राय नहीं देगा। ट्रंप इंतजामिया ने कोरोना वायरस टास्क फोर्स के सीनियर ओहदेदार अंटोनी फाउची को कांग्रेस के सामने पेशी से रोक दिया है।
व्हाइट हाउस ने कोरोना वायरस टास्क फोर्स के सीनियर ओहदेदार को कांग्रेस के सामने पेश होने से रोक दिया है। कांग्रेस की झेली कमेटी ने कोरोना वायरस की रोकथाम पर हुकूमती इक़दामात की तहकीकात के लिए फौजी को आइंदा हफ्ते तलब किया था। व्हाइट हाउस के मुताबिक फौजी की कांग्रेस कमेटी में पेशी से उनके काम में रुकावट पैदा हो गई। वो मुनासिब वक्त पर गवाही के लिए पेश होने के पाबंद हैं। कयास सराइयां दम तोड़ गईं। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन मंजर आम पर आ गए। किम जोंग उन 3 हफ्तों के बाद अचानक अवाम के सामने आ गए। उन्हें खाद फैक्ट्री की इफ्तिताई तकरीब में फीता काटते दिखाया गया है। किम जोंग उन 11 अप्रैल को होने वाले पार्टी इजलास के बाद से मंजर से गायब थे, जिसके बायस उनके खराब सेहत और उनकी हलाकत से मुतालिक अफवाहें जेर गर्दिश थीं। जापान में कोरोना मरीजों को इस वक्त हैरत का खुशगवार झटका लगता है जब उन्हें होटल क्वारंटीना सेंटर मुंतकिल किया जाता है। डॉक्टर की बजाय इस्तकबाल के लिए रिपोर्ट की मौजूदगी मरीजों की बीमारी के खौफ से कुछ देर के लिए आजाद कर देती है। कोरोना के बायस जहां कारोबारी जिंदगी मफलूज है, वहीं रमजानुल मुबारक की रौनकें कम हो चुकी हैं। 2020 का रमजानुल मुबारक 2019 के रमजानुल मुबारक से किस कदर मुख्तलिफ है, ये बताएंगे अता हुसैन अपनी रिपोर्ट में। रमजानुल मुबारक रहमतों, इबादतों और लोगों को जोड़ने का महीना है। इस माह में मसाजिदें नमाजियों से भर जाती थीं। जगह जगह रोजेदारों के लिए अफ्तार का इंतजाम किया जाता था, लेकिन आज सब वीरान है। रमजान में हर कोई रब दो जहां का कुर्ब हासिल करने की कोशिश में मसरूफ रहता है। सब ही की ख्वाहिश होती है कि वो किसी को सहर कराएं तो किसी को अफ्तार। घर हो या होटल और बड़े बड़े हॉल, वहाँ अजीजों, अकारिब और दोस्तों को अफ्तार पर जमा किया जाता है। रमजान में अफ्तारी के इज्तिमात भी हमारी सकाफत का हिस्सा बन चुके हैं। जिसके घर छोटे होते हैं वो होटल्स पर सहरी या अफ्तारी का एहतमाम करता है। लेकिन इस कोरोना वायरस ने लोगों को करीब लाने के बजाय इस माह मुकद्दस में भी भाई को भाई से दूर कर दिया। उलमा इकराम कहते हैं कि अल्लाह हमसे नाराज है। हम यही दुआ करते हैं कि वो हमसे राजी हो जाए और तौबा को कबूल करे। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी वबा हो या कोई भी बीमारी हो या कोई भी हादसा हो या कोई भी आजमाइश हो या कोई भी मुश्किल हो, इन सारी चीजों से निकलने के लिए अल्लाह से लो लगाना और कुरान की तिलावत करना, क्योंकि रब्बुल आलमीन कहता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफा, कि अल्लाह ने कुरान को शिफा बनाकर हमारे लिए नाजिल किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मर्तबा जो है वो हमारी बदकिस्मती है। मस्जिदों का गैर आबाद होना, एक दूसरे से कट जाना, खिदमत एक दूसरे की ना करना। आज हमें अपने घरों को, अपने बच्चों के कुलूब को, अपनी फैमिलीज के साथ बैठ करके अल्लाह की इबादत के नूर को अपने घर में भी रोशन करें और गिड़गिड़ा के दुआ कीजिए, खुदा की बारगाह में हाजिर हुई, खुलूस के साथ हाजिर हुई। शहरी कहते हैं कि ये हमारे अमाल का नतीजा है कि अल्लाह ने मसाजिद के दरवाजे हम पर बंद कर दिए हैं। वैसे तो ये हमारे गुनाहों की सजा ही है एक तरह से, और अगर देखा जाए तो मतलब अल्लाह अपने घर जैसे कहते हैं कि हम नहीं जाते, तो ये सोच हमारी गलत है कि हम नहीं जाते। ये समझ लें कि अल्लाह हमें अपने घर पे नहीं बुला रहा है। बस मेरे भाई, हमारे अमालों का नतीजा है ये। हमारे अमाल ही ऐसे हैं कि अल्लाह ताला हमें अपने घर में नहीं बुला रहा, और अल्लाह पाक ने हमें इस दफ़ा इफ्तारी से, सहरी से, हर चीज़ों से महरूम रखा है। बहुत तकलीफ दे है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है। अल्लाह हम सब के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अब ना तो घरों में तकरीबात हैं, ना ही होटल्स पर, और ना सड़कों पर जा बजा अफ्तार का इंतजाम है। ये क्या हो गया हमारे माशरे को? किसकी नजर लग गई? एक दूसरे को करीब लाने के बजाय हम खुद ही इन्हें दूर करने पर मजबूर हैं। इसीलिए कहते हैं संभल जाओ, रियाकारी ना करो,
झूठ और मकरो फरेब से बाज आ जाओ। इन सब मकरो फेल के साथ नमाज, इबादत और अफ्तार पार्टियां किस काम की? क्या हम कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए? शायद कुदरत ने हमें एक दफा फिर झंझोड़ा है और एक मौका और फराहम किया है कि हम संभल जाएं। कैमरामैन एहसान रज़ा के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। अब कुछ बात करेंगे कश्मीर की। आपको बताएं कि वादी जन्नत नसीर में कर्फ्यू को 273 रोज बीत गए हैं। काबिज फौज की इंसान दुश्मन कार्रवाइयां थम ना सकी। अगवा, कत्ल, इस्मत दरी के वाकयात मामूल। इसके साथ साथ ग़ज़ाई किल्लत और अद्वियात का बहरान भी बरकरार है। मकबूजा वादी में बुज़दिल भारतीय फौज की वहशियाना कार्रवाइयों में मजीद तेजी आ गई। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की ताज़ा लहर के दौरान भारतीय फौज ने घर घर तलाशी की आड़ में लूट मार और अस्मत दरी की वारदातों की अंजामदेही का सिलसिला शुरू कर रखा है। कोई सदाए एहतजाज बुलंद करे तो अब दीन सुला दिया जाता है। वादी में वबाई हमलों के बीच शदीद खतरात मंडला रहे हैं। काबिज इंतजामिया ने कश्मीरियों को इलाज की सहूलियात देने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है। मुकामी डॉक्टरों को लोगों के इलाज से मना किया गया है। बात न मानने पर जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। वादी में जबरी पाबंदियां 9 माह से बरकरार हैं। खुराक, अजनास और अद्वियात की तरसील पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। तालीमी इदारों पर ताले हैं। कारोबारी मराकज बंद, गलियां और बाजार सुनसान पड़े हैं। चप्पे चप्पे पर बुज़दिल फौज की चौकियां मौजूद हैं। इंटरनेट, मोबाइल और लैंडलाइन सर्विसेज भी मुअत्तल हैं। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ भाग हो गया। मकतूल अली वजीर के साथ भी मुख्तलिफ मामलात में इख्तलाफात चल रहे थे। जाँ भाग शख्स की शनाख्त आरिफ वजीर के नाम से हुई। फायरिंग का वाक़या इफ्तार से कबल उस वक्त पेश आया जब ये शख्स घर के बाहर खड़ा था। गोलियां लगने से आरिफ वजीर शदीद जख्मी हो गया। उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया लेकिन जाँबर न हो सका। मकतूल चंद माह कबल DI खान की जेल से रिहा हुआ था। बताया जाता है कि उसके गैर मुल्की फंडिंग और दीगर उमूर पर अली वजीर के साथ इख्तलाफात थे। मकतूल का एक पेट्रोल पंप है और उसका झगड़ा चल रहा था। मुल्तान में ज़िले इंतजामिया की जानिब से नाजायज मुनाफाखोरों को जेल भेजने और उन पर जुर्माने आयद करने की मुहिम जारी है। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने गुज़िश्ता 24 घंटों में गराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट जारी कर दी है। ज़िले इंतजामिया की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल प्राइस मजिस्ट्रेट ने 22 मुनाफाखोरों को मौके पर गिरफ्तार किया, जबकि 4 दुकानदारों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। 18 गराम फरोशों को समरी ट्रायल के लिए बराह रास्त जेल भिजवाया गया है और तहसील मुल्तान में 6, सदर में 2, शुजाबाद में 12 और जलालपुर पीरवाला में 2 गराम फरोशों को गिरफ्तार किया गया है। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर के सब्जी और फ्रूट मंडियों के दौरे भी जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सदर शहजाद महबूब ने सब्जी मंडी कादिरपुरान के दौरा किया है और कोरोना वायरस से बचाव के बारे में इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया गया है। रहीम यार खान में बासर दुकानदार का ठेले वाले मेहनतकश पर बदतरीन तशद्दुद। CCTV फुटेज सच न्यूज ने हासिल कर ली है। रहीम यार खान के सादिकाबाद में दुकान के सामने ठेला लगाने के तनाजे पर दुकानदार ने मुश्तइल अफराद के साथ मिलकर ठेले वाले को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक ठेले वाला जान बचाने के लिए जामिया कादरिया की मस्जिद में पेश इमाम के घर दाखिल हो गया, मगर गुंडा नासिर ने पेश इमाम के घर में घुसकर मेहनतकश को तशद्दुद का निशाना बनाया और फरार हो गए। ठेले वाले को जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पेशावर पुलिस लाइन में कायम कोरोना सेंटर में सहूलियात का फुकदान है। शहरियों ने गिला कर दिया है। आपको बताएं कि पेशावर पुलिस लाइन में कायम कोरोना सेंटर में सहूलियात का फुकदान। शहरियों से कोरोना टेस्ट लिया गया है मगर रिपोर्ट 3 दिन बाद भी ना मिल सकी है। राब्ता नंबर भी दिया मगर मौसूफ कॉल उठाते ही नहीं है। शहरियों की जानिब से शदीद गम गुस्से का इजहार भी किया गया है और रिपोर्ट लेने के लिए आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना भी है। पेशावर पुलिस लाइन में कायम कोरोना सेंटर में सहूलियात का फुकदान है जिस पर शहरियों की जानिब से गिला किया गया है। शहरियों का कहना है कि कोरोना टेस्ट भी लिया गया है मगर रिपोर्ट 3 दिन बाद भी नहीं मिल सकी है। राब्ता नंबर भी दिया मगर मौसूफ कॉल नहीं उठाते हैं। लाहौर में कोरोना से बचाव के लिए डिसइंफेक्शन स्प्रे किया जा रहा है। मजीद तफसीलात इकलाल हैदर से जानेंगे। बताइएगा किन इलाकों में स्प्रे किया जा रहा है और अब तक कितने इलाकों में स्प्रे हो चुका है?
جی بالکل، کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جہاں مختلف تدابیر اپنائی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ عوام الناس میں بھی شعور اجاگر کیا جا رہا ہے کہ وہ سوشل ڈسٹینس رکھیں اور اس کے علاوہ ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، اس طرح کے جو SOPs ہیں حکومت کی جانب سے دیے جا رہے ہیں اور محکمہ صحت کی جانب سے ہدایت نامہ جاری کیا جا رہا ہے، ان پر عمل کروایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو گورنمنٹ ہے اس کی جانب سے مختلف علاقوں میں ڈس انفیکشن سپرے بھی کیا جا رہا ہے۔ ڈس انفیکشن سپرے کے جو فوکل پرسن ہیں عمران رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے جی بتائیے گا کیا حکمت عملی اپنائی گئی ہے اور کن کن علاقوں میں سپرے کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی لاہور میں ڈس انفیکشن سپرے چل رہی ہے وہ تقریباً ہم نے ابھی تک 1200 کلومیٹر کا ایریا کور کیا ہے۔ کوئی 2000 کے قریب چھوٹی بڑی مارکیٹس ہیں، پوائنٹس ہیں، شاپس ہیں، ان کو ہم نے کور کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو لاک ڈاؤن کے ایریے ہیں وہ ابھی ہمارے پاس 33 کے قریب لاہور میں لاک ڈاؤن کے ایریے ہیں، جہاں پہ پیشنٹ نکلتا ہے پھر اس ایریے کو ہم لاک کر دیتے ہیں اور اس ایریے میں ہم بار بار جاتے ہیں، ڈیلی کی بنیاد پہ جاتے ہیں، ان کو ڈس انفیکٹ کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بریگل جو ہے وہ جا کے قبرستان میں ہم وہاں پہ بھی ہم ڈس انفیکٹ کرتے ہیں، اس تدفین سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اسی طرح یہ جو ہمارا سارا پروگرام ہے یہ 24 آور چلتا ہے اور رمضان شریف کے دوران بھی ہم 24 آور کام کر رہے ہیں۔ صرف صبح سحری کے وقت اور شام کو افطاری کے وقت تھوڑا سا ریسٹ ہے، ریسٹ وہ بھی صرف اور صرف افطاری اور سحری کے لیے ہے جوانوں کو، اس کے علاوہ یہ 24 آور کام کر رہے ہیں۔ جی بالکل، ڈس انفیکشن اسپرے کے فوکل پرسن عمران رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ 24 گھنٹے دن رات جو اس وقت بہت شکریہ اجلال حیدر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انتہا پسند بھارت کے خلاف آخرکار دبئی میں بھی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ دبئی کے سماجی رہنما نے کہا ہے کہ بھارت انسانیت کے خلاف سنگین جرائم کا مرتکب ہے، عالمی برادری صورتحال پر نوٹس لیں۔ خلیجی ریاستوں کا اسرائیل سے دوستی اور فلسطین سے دوری کا کھیل کھل کر سامنے آ گیا۔ سعودی عرب اور دیگر ریاستوں میں ماہ مقدس میں ہارون کے نام سے ڈرامہ سیریل چلا کر فلسطینیوں کے زخموں پر نمک چھڑک دیا گیا۔ اسرائیل عرب دوستی کے عنوان سے چلنے والے ڈرامہ سیریل سے عرب ریاستوں کا فلسطینی عوام سے دوہرا معیار کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ فلسطین کے بہادر عوام ہر طرح کی مصیبتوں کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ فلسطین پر ستم ظریفی صرف اسرائیل کی نہیں بلکہ اپنے ہی ہم زبان اور مذہب عرب مسلمان حکومتوں کی بھی جاری ہے۔ سعودی عرب میں رمضان المبارک کے دوران ایسے ڈرامہ سیریل کو متعارف کروایا گیا ہے جس کا عنوان اسرائیل عرب دوستی رکھا گیا ہے۔ ڈرامے کا نام ہارون رکھا گیا ہے، جس میں کوشش کی گئی ہے کہ اسرائیل اور عرب دوستی کو پیش کیا جائے، ساتھ ساتھ فلسطین کی ریاست اور فلسطین کے تاریخی وجود سے انکار کی جھوٹی اور من گھڑت تاریخ کا پرچار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ رمضان المبارک کے آغاز پر نشر کیے جانے والے ہارون نامی ڈرامے نے دنیا بھر میں امریکہ اور اسرائیل سمیت عرب اتحاد کی قلعی ایک بار کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ دنیا پر واضح ہو چکا ہے کہ عرب حکمران فلسطین کا سودا کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ فلسطین کی شناخت کو مسخ کرنے کے لیے نشر کیا جانے والا اسرائیل عرب دوستی کا ڈرامہ سیریل سعودی عرب میں ایک TV چینل MBC نیٹ ورک پر نشر کیا گیا ہے۔ ماہ مقدس میں نشر کیے جانے والے اس ڈرامے میں نہ صرف سعودی عرب میں شدید تنقید ہو رہی ہے بلکہ دنیا بھر میں اس ڈرامہ سیریل کے مکالمے اور متن پر شدید اعتراض کے ساتھ اس کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا گیا ہے۔ فلسطین کی سب سے بڑی سیاسی اور عسکری جماعت حماس نے MBC نیٹ ورک پر نشر ہونے والے اسرائیل عرب دوستی ڈرامہ سیریل کے بارے میں واضح موقف اپناتے ہوئے اس ڈرامہ سیریل کو شیطانی چال قرار دیا ہے۔ فلسطینی عوام نے سعودی عرب سمیت دیگر خلیجی ممالک کے TV چینلز پر نشر ڈرامے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس اقدام کو ماہ مقدس کی توہین قرار دیا ہے۔ امریکی معیشت پر سوال کے سائے گہرے ہونے لگے ہیں۔ چین نے ڈالر کے مقابلے میں قومی کرنسی میں کاروبار کا فیصلہ کر لیا ہے، نئی ڈیجیٹل کرنسی بھی لے آیا۔ چین نے سپر وار کو لرزا کر رکھ دیا، اڑتے ڈالر کو زمیں بوس کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اسٹاک ایکسچینج میں ڈالر کی جگہ قومی کرنسی یوان میں ٹریڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ فیصلہ چینی تاریخ کا اہم ترین اور جرأت مندانہ قدم ہے۔ چین کے فیصلے سے امریکی ڈالر تیزی سے گراوٹ کا شکار ہوگا، جس کا اثر عالمی منڈیوں پر بھی پڑے گا۔ معاشی محاذ کی اس نہج پر امریکہ نے غیر دانشمندانہ رویہ اپنایا تو چین 2021 میں دنیا کی قیادت کرے گا۔ ڈالر سے مقابلے کے لیے چین نے علیحدہ ڈیجیٹل کرنسی ERMB کا محدود پیمانے پر استعمال شروع کر دیا ہے۔ چینی حکام کہتے ہیں خود مختار ڈیجیٹل کرنسی سے امریکہ کی جبری پابندیوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔
चीनी हुकूमत ने बाद सरकारी इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहें भी डिजिटल करेंसी में अदा करना शुरू कर दी हैं। बुलेटिन का यहाँ पर इख्तिताम करेंगे, लेकिन जाते जाते आपको बताएं कि कोरोना लॉकडाउन के बायस इंसान महदूद हुए तो जानवरों की मौजें लग गई। शरारती बंदरों को न जाने कहां से बच्चों का मोटरसाइकिल मिल गया। एक के बाद एक बंदर मोटरसाइकिल पर सवार होता रहा और मोटरसाइकिल चलाने की कोशिश करता रहा।